would like to invite the author and eminent columnist Shri Tuhin Sinha to the dais to. Okay, all right. Then we'll have Suraj Prasad, founder of Health Startups and an author, to share a few words about the book with us. Idea and book with him. Rupa team, you're here. I was Swarm will be somewhere. Friends and everyone. Thank you for gracing this occasion. A book are just pieces of words put together which tells a story. And a story can, it's a vision of a writer, but also it's a form of a narrative. There are so many stories which we have heard from the past, but sometimes in the sands of time, the stories gets missing. So India is such a wide country. भारत इतना विशाल देश है कि if we start, one life is not enough. Someone told me एक जीवन काफी नहीं है पूरे इंडिया भारत को देखने के लिए. Which means there's so many stories in different part of the country. Now to bring one such story of Sidhu Kano to life, and this is the story which Tuhinji bought in the concept and said that let us try to see this place. And it was so difficult to get information because everywhere the same information was looped in. And to think about, to go back to 1855, that period, an era where the life was very simple, straightforward, and yet the idea of freedom was active and alive. Because in the end, it simply means that freedom is an idea which always stays with the humans. No one likes oppression, no matter who or what they are. And that's where the Santalhul revolution started, with a simple idea of freedom. So, with a lot of creativity insights, we patched together the story. In 20 years I worked in consulting analytics. There's a concept known as synthetic data, which is basically, there's real world data, which is the primary research, but there's synthetic data, which is basically, if things are not clear, we need to fill in the gaps. So by taking the real world information of Sidhu Kano history, we saw a lot of gaps. So within this gap, we have filled as best as what we could, because there's always, if you see any revolution, there's an idea, there's a rise, there's a plateau, and there's a fall. So we filled in those gaps with those data and wrote the story in a form which is easily read. Hopefully, in time, in our school books, the story of the four brothers and two sisters will come forward, and we shall all understand. And we keep saying this, all of us come from different parts of the country. Our parents may be from different states and all. Everywhere there's a story. Why not look in the past and bring the story forward? And that's our mission out here. So I'll just finish right now here. So thank you for this opportunity and hearing us. And hopefully once you read the book, you will like it. It was brilliant. Now we will have Shri Tuhin Sinha here to share a few words about the book. माननीय मुख्य अतिथि जी श्री बैजयंत पांडा जी, माननीय विशेष अतिथि श्री दीपक प्रकाश जी, माननीय श्री डॉक्टर रमेश गौर जी, माननीय मेरे सह लेखक सूरज प्रसाद जी, रूपा की टीम और सभी यहाँ पे उपस्थित मित्रगण, आज जब हम यहाँ मौजूद हैं, विपक्ष के द्वारा लाया गया एक अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर. देखिए, दुर्भाग्य की क्या बात यह है कि जिन लोगों ने आज ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लाए हैं, वही लोग 7 दशकों तक जो हमारे जनजातीय योद्धा हैं उन पर अविश्वास जताकर उनको इतिहास के पन्नों से बाहर रखने का काम उन्होंने किया. तो ये पुस्तक सिद्धू कान्हू जो है वो उस भूल को सुधारने का एक विनम्र प्रयास है. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, 30 सेकंड में लूंगा. आपको एक संथाल गीत किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया था. सिद्धू कान्हू की जो भूल थी, जो उनका रेवोल्यूशन था, उसको समर्पित ये गीत है, संथाल गीत है. अभी समीर ओरांव जी यहाँ पर नहीं है, अगर वो आते होते तो शायद अभी आने वाले हैं और आनंद आता है इसको सुनने में. लेकिन 30 सेकंड मैं आपका लूंगा, ये सुनिए.
तो ये गीत जो है ये पूरी तरह से संथाल गीत है। शायद यहाँ मुझे पता नहीं कोई संथाल मौजूद है या नहीं, लेकिन ये समर्पित है 1855 के उस हूल, उस आंदोलन, उस क्रांति को जिसमें लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया, 10,000 लोग शहीद हुए। लेकिन उसके बावजूद इस युद्ध को, मैं युद्ध की संज्ञा उसको दे रहा हूं, उसके बावजूद इस युद्ध का जिक्र जो है, इसका वर्णन कहीं हमारे इतिहास के पन्नों में कहीं दूर दूर तक नहीं था। बहुत सारी चीजें जो हैं 2014 के बाद बदली। मेरी यात्रा इन पुस्तकों को लिखने की जो यात्रा है वो कहां से आरंभ हुई मैं आपको बताता हूं। मेरा जन्म जो है वो जमशेदपुर में हुआ है। प्रारंभिक 18 वर्ष मैंने जमशेदपुर में बिताए। वो एक ऐसा इलाका है जहां अगर आप 4-5 किलोमीटर जाएं तो कहीं ना कहीं आपको बिरसा नगर बस्ती दिखेगी, तो कहीं ना कहीं आपको बिरसा मुंडा चौक दिखेगा। तो एक नेचुरल जिज्ञासा थी बिरसा मुंडा के बारे में जानने की। लेकिन जो प्रारंभिक स्रोत थे उनके बारे में जानकारी इतने कम थे कि मुझे कई 10 पुस्तकें मैंने जब लिख ली, राजनीति में प्रवक्ता के तौर पर स्थापित हो चुका था, तब मेरे जहन में आया कि अब अगर मैं इस विषय पर नहीं लिखूं, अब इस विषय पर अध्ययन नहीं करूं तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा। माननीय समीर जी आए हैं, आप तालियों के साथ स्वागत करिए। समीर जी का हृदय से आभार यहाँ उपस्थित होने के लिए। समीर जी जैसा कि आपको पता होगा राज्यसभा मेंबर होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शेड्यूल्ड ट्राइब मोर्चा के भी प्रभारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो एक विशेष जानकारी जो है, इनको जितना मैं बता पा रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये घंटों बात कर सकते हैं इस हूल पर। तो ये यात्रा मेरी जो है लेखक के तौर पर इन तीन विषय हमने लिए। एक ट्रायलॉजी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। पहली पुस्तक उस कड़ी में थी द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, क्योंकि बिरसा मुंडा जो है आज भी जो उनका आंदोलन था वो, देखिए जो ट्राइबल रेवोल्यूशंस हैं वो लगभग 1765 से चले आ रहे हैं और लगभग उसी क्षेत्र में उड़ीसा, जो ये सब बंगाल का हिस्सा हुआ करते थे, तो 1765 से चले आ रहे हैं और लगभग 1947 तक, जब तक आजादी प्राप्त नहीं हुई थी तब तक थे। बिरसा मुंडा जो है वो कहीं बीच में आते थे। इसमें भी एक विचित्र बात यह है कि 1850 के पहले जो क्रांति होती थी, पहले जो आंदोलन होती थी, उसका मुख्य कारण होता था आर्थिक प्रताड़ना, अर्थात जो अंग्रेजों की जो प्रताड़ना होती थी ट्राइबल क्षेत्र में, वो जमींदार और मनी लेंडर्स के थ्रू होती थी। तरह तरह के टैक्सेस इंपोज किए जाते थे और अंततः ट्राइबल जो हमारे जनजातीय समूह है उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था बजाय इसके कि क्रांति के पथ पर अग्रसर हो। 1850 के बाद इन क्रांतियों का स्वरूप थोड़ा बदला। आर्थिक प्रताड़ना के साथ साथ एक प्रकार से सांस्कृतिक प्रताड़ना का आरंभ हुआ। जर्मन मिशनरी के लगभग 1000 पादरियों को एक प्लान के तहत, एक योजना के तहत रांची के आसपास बसाया गया और उनको जो है साल के टारगेट्स दिए जाने लगे कि आपको इतने परिवारों को कन्वर्ट करना है। तो 1850 के बाद जो जनजातीय क्रांति हुई है वो आर्थिक प्रताड़ना के साथ साथ उनका कारण काफी हद तक सांस्कृतिक प्रताड़ना भी था, कन्वर्जन का था। तो बिरसा मुंडा का जो रेवोल्यूशन था वो मूल तौर पर फादर हॉफमैन के विरुद्ध था। संथाल ये जो 1855 का रेवोल्यूशन था वो प्राइमरीली जो था, जो जमींदार और मनी लेंडर्स प्रताड़ना करते थे उसके विरुद्ध था। और देखिए दिलचस्प बात यह है कि जब ये युद्ध आरंभ हुआ था, ये एक कम्युनिटी प्रयास था। ये कोई मतलब एक परिवार था जो मौजूदा भोगनाडी इलाका है साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में, एक परिवार था जो पूरी तरह से त्रस्त हो चुका था। 4 भाई सिद्धो, कानो, चांद, भैरव और 2 बहनें फूलो और जानू, सबके अपने परिवार थे। उम्र भी काफी 30 से ऊपर थे, लेकिन सब ने ये सामूहिक निर्णय लिया कि अगर हम इस वक्त
इस प्रताड़ना के विरुद्ध खड़े नहीं होंगे तो आगे जो है हमारी जो दशा है वो बिगड़ती जाएगी। और अंततः 8-9 महीने के दरमियान, जैसे आज हम 10 अगस्त के आसपास हैं, इस क्रांति का आरंभ 30 जून 1855 में हुआ था और आज लगभग 10-11 अगस्त के आसपास जो है सिद्धू की हत्या हुई थी, जो पहला भाई था, जो सबसे बड़ा भाई था। उसके बाद कुछ हफ्तों तक ये थम जाता था। फिर जब बात फैलती थी इस आंदोलन की दूसरे गांव में, तो आज के जो भागलपुर क्षेत्र है बिहार के अंदर, वहां से लेकर झारखंड के कई डिस्ट्रिक्ट, राजमहल, गोड्डा, दुमका और बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो स्तर था, जो मैग्नीट्यूड का रेवोल्यूशन था, वो इतना भव्य था कि इस वजह से हमने उसको एक संज्ञा दी है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बैजन जी इस पर और प्रकाश डालेंगे, उनकी मत कुछ अलग है इस पर, वो मुझे बता रहे थे। तो मेरे ख्याल से ये वक्त आया है कि आप और प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे कि ये अनसंग वॉरियर्स को जो है उनकी भूमिका मेन स्ट्रीम की जाए। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है किताबों के जरिए। एक और कारण है कि हमने ये किताबें लिखी। देखिए, कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो अब हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ही बांटना शुरू कर चुके हैं। तो जब उनका मन करता है वो कुछ सावरकर के खिलाफ कह देते हैं। तो इससे पहले कि उनकी जरूरत हो कि वो हमारे जनजातीय योद्धाओं के खिलाफ कुछ कहे, हमने सोचा कि एक नैरेटिव पूरी तरह से तैयार कर दे कि हमारी आजादी की लड़ाई, हमारा स्वतंत्रता संग्राम किसी भी एक विचारधारा की जागीर नहीं थी। ये संग्राम जो है कांग्रेस की स्थापना से 100 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और हर एक व्यक्ति जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है उसको उपयुक्त स्थान मिलना चाहिए इतिहास में। तो इस आशा के साथ मैं अपना संबोधन समाप्त करता हूं। मैं आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को आप पढ़ें और इस यात्रा में खुद को ढालें और शामिल करें। धन्यवाद।